નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ કાર્યક્રમ કરંટ અફેર્સમાં હું જયેશ સોની આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ટેક્સટાઇલ માર્કેટની અંદર આવી રહેલી ભયંકર મંદીની। ખૂબ જ ભયંકર પરિસ્થિતિમાંથી ઉદ્યોગ અત્યારે પસાર થઈ રહ્યો છે। લગભગ 40% જેટલું ઉત્પાદન કાપ હાલ ચાલી રહ્યું છે। જે ઉદ્યોગમાં પહેલા રોજનું 4 કરોડ મીટર કાપડનું ઉત્પાદન થતું હતું એ હાલ અત્યારે લગભગ 3 કરોડથી પણ ઓછું રહી ગયું છે અને એને કારણે ઉદ્યોગ ઉપર ખૂબ જ માઠી અસર પહોંચી રહી છે। શું કારણો છે ઉદ્યોગ ઉપર મંદી આવવાના એ વિશેનો એક વિશેષ અહેવાલ આપણે જોઈ લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે આ વિષય ઉપર વિશેષ ચર્ચા કરીશું। ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં દિવાળી પછી છેલ્લા 6 મહિનાથી મંદીનું ગ્રહણ લાગ્યું છે। ટેક્સટાઇલ સિટી કહેવાતા સુરતમાં ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં જ મંદીનો માહોલ હોવાના કારણે કાપડ વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ પણ મૂંઝવણમાં મુકાયા છે। કાપડ ઉદ્યોગપતિઓનું એવું માનવું છે કે લોકોની ખરીદ શક્તિ ઓછી થવાના કારણે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ હાલ મંદીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે। તો બીજી તરફ કાપડ ઉદ્યોગકારોનું એવું પણ માનવું છે કે પહેલા લોકો વાર તહેવાર પર કપડાની ખરીદી કરીને વધારે પ્રાધાન્ય આપતા હતા, પરંતુ હવે જે રીતે ફેશનનો ટ્રેન્ડ બદલાયો છે તે રીતે લોકો કપડાની ખરીદી ઓછી કરી રહ્યા છે। મોટાભાગે લોકો ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ ખરીદવાને વધારે પ્રાધાન્ય આપતા હોય છે અને તેમાં પણ બદલાતા ટ્રેન્ડ વચ્ચે હવે લોકો મોબાઈલને જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુ માની રહ્યા છે। આ કારણે જ લોકો કપડાની ખરીદી ઓછી કરીને ઇલેક્ટ્રિક ચીજ વસ્તુની ખરીદી તરફ વળ્યા છે। હાલમાં જે રીતે માત્ર પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીની પરંતુ તમામ ઇન્ડસ્ટ્રી વિવિંગ હોય, પ્રોસેસિંગ હોય કે પછી યાર્નની ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે પછી ટેક્સટાઇલ માર્કેટની દુકાનો હોય, લગભગ અત્યારે સુરતની ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં છેલ્લા 6 મહિનાથી દિવાળી પછી જે મંદીનું ગ્રહણ લાગ્યું છે લગભગ અત્યાર સુધી છૂટ્યું નથી। વચ્ચે 2-4 દિવસ કદાચ કોઈ આશા થાય છે, પાછું નોર્મલ થઈ જાય છે। આની પાછળ એક જ વસ્તુ મને કારણ દેખાય છે કે લોકોની ખરીદ શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે અને બીજું કે જે ખરીદવાની જે એ લોકોને એ છે એમાં મોબાઈલ છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ એનો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં અત્યારે આ પૈસા એમાં ઘણા ડાયવર્ટ થઈ ગયા છે। કાપડ ઉદ્યોગકારોનું કહેવું છે કે પહેલા રોટી, કપડાં અને મકાન આ 3 વસ્તુ લોકોના જીવન જરૂરિયાત હતી, પરંતુ હવે કપડાની જગ્યા પર મોબાઈલે સ્થાન લીધું છે અને એટલા માટે જ જે લોકો વર્ષમાં 3 થી 4 વાર કપડાની ખરીદી કરતા હતા તે હવે 1 થી 2 વાર જ કપડાની ખરીદી કરી રહ્યા છે। આ ઉપરાંત વખત જે ફેશન બદલાઈ રહી છે તેના અનુરૂપ જો કાપડ ન હોય તો પણ લોકો કપડાની ખરીદી કરવાનું ટાળે છે અને આ જ કારણે લોકોની કપડાં ખરીદવા પ્રત્યેની ઈચ્છા શક્તિ ઓછી થઈ રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। પહેલા મહિલાઓ વધારે પ્રમાણમાં સાડી અને ડ્રેસ પહેરવાનું પસંદ કરતી હતી, જેના કારણે એક સાડી હોય તો 4.5 થી 5 મીટર જેટલું કપડું મહિલાઓના શરીર પર રહેતું હતું। હવે ફેશન ટ્રેન્ડ બદલાઈ ગયું છે। જીન્સ, પેન્ટ, ટી શર્ટ, લેગિન્સ અને કુર્તી એ સાડી અને ડ્રેસનું સ્થાન લઈ લીધું છે, જેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક કાપડ ઉદ્યોગને થોડી મુશ્કેલી પડી છે। આ ઉપરાંત સરકાર દ્વારા જે ટફની સ્કીમ લાગુ કરવામાં આવી હતી તે પણ પૂરી થઈ ગઈ છે અને ત્યારબાદ કોઈ બીજી સ્કીમની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી। તો આપણે જે રીતે જોયું કે કપડા ઉદ્યોગને હાલ અત્યારે મંદીનું ગ્રહણ લાગ્યું છે અને જે બદલાતા ટ્રેન્ડને કારણે કે અન્ય મંદીને કારણે હાલ અત્યારે સુરતનો જે કપડા ઉદ્યોગ છે એ ખૂબ જ મંદીની માહોલમાં સપડાયો છે। આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે રંગનાથ શારદાજી જોડાઈ રહ્યા છે, પૂર્વ ફોસ્ટા પ્રમુખ। આપણે એમની સાથે આખા આ સમગ્ર माहौल विषय चर्चा करीशू। रंगनाथ शारदा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। रंगनाथ जी, मेरी आवाज आ रही है आपके तक?
લાગે છે કે रंगनाथ सरदार जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? शारदा जी, आपसे सबसे पहले जानने की कोशिश करना है हमें कि किस तरह से ये पूरा माहौल क्रिएट हुआ है, ये टेक्सटाइल मार्केट के अंदर किस तरह की मंदी आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले दर्शक मित्रों को सबको मेरा नमस्कार। ये जो मंदी सूरत कपड़ा बाजार की आप देखने को मिल रही है, वो लगभग दिवाली के आसपास से देखने को मिल रही है। जैसे हमारी 3 सीजन थी, नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दीपावली। तो ये पिछली ये जो भी सीजन तीनों गई, इससे बिफोर जो इसके लास्ट ईयर जो सीजन थी वो अच्छी गई थी। ये दीपावली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा पे 16,000 करोड़ का कारोबार हुआ डोमेस्टिक सूरत कपड़ा बाजार का 45 डेज का। लेकिन पिछली दीपावली ये जो कारोबार हुआ है वो करीबन 12,000 करोड़ के आसपास रुक गया। उसके बाद से ये मंदी का थोड़ा माहौल हो गया, शुरू हो गया। तो इसका वजह हमें ऐसा लग रहा है कि महंगाई जो बढ़ी है और लोगों की जो अर्निंग है, जो इनकम है, वो नहीं बढ़ी उस प्रमाण से। तो लोगों को जीवन जरूरत की चीजें, खाने पीने के सामान, आज कोई भी चीज देख लो, मसाले है, तेल है, हर चीज महंगी हो गई। तो हमारा जो भी ये कपड़ा है, ये रूरल इंडिया में ही खपत होती है, जो सिंथेटिक कपड़ा है। तो उन लोगों की जो मतलब जो क्रय शक्ति है वो काफी कमजोर हुई है। दूसरी बात, जैसे हम बात करें कि ये क्रय शक्ति कमजोर हुई है, तो उसके बाद में उनकी प्राथमिकता हो जाती है मेडिकल, घर में अगर कोई बीमार है उसके लिए वो प्राथमिकता हो जाती है। इसके बाद में एजुकेशन है, वो प्राथमिकता हो जाती है। कपड़ा हमारा चौथे नंबर पे आता है। तो जनरली जो भी कटौती हो रही है वो कपड़े पे हो रही है। अब रही बात सूरत कपड़ा मंडी की, अगर मैं बात करूं तो त्योहारों की सीजन आती है तभी सूरत कपड़ा बाजार की जो ग्राहकी है वो गति पकड़ती है। और अभी वर्तमान के अंदर आपने देखा, पोंगल जो गई वो 50% भी रही। हमारी रमजान की सीजन की जो 2,000 करोड़ का कारोबार है वो भी 50% रहा। अभी हम शादी ब्याह की सीजन की बात कर रहे हैं, वो भी 50% ही रहा है। तो इसकी वजह हमारे को यही लग रहा है कि ये मंदी की वजह है, वो क्रय शक्ति लोगों की कम हुई है, वो वजह भी है। दूसरा, आज जो कामकाजी महिलाएं हैं, वर्क फ्रॉम होम से वो कर रही है, तो उसको इतनी इसकी जरूरत भी नहीं रही है। सिंथेटिक कपड़े जो हमारे यहाँ से जाते हैं, तो उसको ये जो भी कोई भी कटौती होती है वो हमारे कपड़े पे ही हो रही है। तो कुल मिलाकर के महंगाई का काफी असर हुआ है, लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हुई है। और जो हमारा माल बाहर मंडियों में जाता था, नो डाउट फैशन का अभी चेंज हुआ ट्रैक। जैसे शादी ब्याह की सीजन में पहले लेन देन में हमारी साड़ियां या ड्रेस है वो ज्यादातर जाता था। अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो ट्रेंड आ गया है, जैसे आज किसी के पास देखो महंगे मोबाइल मिल जाएंगे, तो वो देने लेने में आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्रचलन हो गया, उसका भी असर है वो हमारे कपड़े पे पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि सूरत कपड़ा बाजार को अगर हम बात करने जावे, पिछले साल कोरोना के होते अभी हमने 85,000 करोड़ का कारोबार किया था सूरत कपड़ा मंडी का। लेकिन अभी हाल ही के अंदर अगर बात करने जाए, हम सोच रहे थे कि हम 1 लाख करोड़ से कारोबार क्रॉस कर लेंगे, लेकिन अब हमें ये 2-3 सीजन जो हमारी फेल गई है उससे देखकर हमें लग रहा है कि उसको अचीव कर पाना अभी हमारे लिए फिलहाल मंडी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी शारदा जी, ये बताइए कि अभी जो प्रोडक्शन है, पहले 4 करोड़ से ज्यादा का रोज का प्रोडक्शन था, अभी क्या स्थिति है प्रोडक्शन को लेकर के? देखिए, अगर हमारी कपड़ा इंडस्ट्री की अगर बात करने जाए तो हमारे यहाँ पे करीबन 6.5 लाख लूम सादे हैं, 2-2.25 लाख लूम हमारे वाटर जेट जैकॉर्ड के है, रेपियर है, वाटर जेट जैकॉर्ड है। तो कहने का मतलब प्रोडक्शन जो था 4.5 करोड़ मीटर पर डे का प्रोडक्शन था, जो हाल ही में मंदी की वजह से ये प्रोडक्शन कट ऑफ हो गया, अभी 3 करोड़ पे आ गया है। मतलब लोगों की जहां 2 पाली होती है वहां 1 पाली पे काम चल रहा है। वजह की खपत नहीं है। जब हमें ट्रेडर हम माल नहीं ज्यादा बेच पा रहे हैं तो हमारी क्रय शक्ति ऑटोमेटिक कमजोर होगी। जब क्रय शक्ति हमारी कमजोर होगी तो उसका असर आपका वीविंग पे पड़ेगा, वीविंग वालों को प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। वैसे ही असर प्रोसेस हाउस पे पड़ेगा, हमारा माल कम जाएगा तो उनको भी प्रोडक्शन कट हो जाएगा उनका। तो वो एज इट इज है, यहाँ पे वो कंटिन्यू सब पे लागू होगा। तो वर्तमान में जो प्रोडक्शन जो कट ऑफ है वो करीबन 1.5 करोड़ मीटर पर डे का प्रोडक्शन कट ऑफ है।
वो हमारी मजबूरी है। हम क्या करें, जब माल नहीं बिक रहा है और जबरदस्ती हम माल को बेचेंगे तो वो पैसा हमारा समय पे नहीं आएगा, और ज्यादा हम पैसे की डिमांड करेंगे आगामी सीजन की तैयारी करने के लिए तो वो रिटर्न कोर्स आ जाएगा। तो कुल मिला के जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। उससे फर्क ये भी पड़ा है कि लेबर का जो भी इनकम है, तो प्रोडक्शन कम होगा तो लेबर को भी वहां पे रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। जैसे जो लेबर 8 घंटा काम करता है, उस लेबर को 6 घंटा काम मिलेगा, या एक दिन छोड़ के एक दिन काम मिलेगा, या काम में उसको पैसा कम मिलेगा। तो कुल मिला के लेबर की भी पोजीशन है वो भी काफी दयनीय हुई है। तो हमारा जो ये कपड़ा सिंथेटिक्स है वो जनरली मीडियम ग्रेड के लोगों को ज्यादा चलन में आता है। जो हाई ग्रेड के लोग होते हैं वो कॉटन है, उसमें वो कई तरह के मतलब प्रोडक्शन लेते हैं, जैसे कुर्तीज है, जीन्स लेगिंग्स है, ये सारी चीजें यूज आ जाती है। नो डाउट शादी ब्याह में जैसा लहंगा की सीजन है, गाउन है वगैरह, ये सब चीजों की खरीदी होती है, लेकिन वो एक लिमिटेड होती है। और शादी ब्याह की सीजन में भी कोरोना के बाद में जो पहले शादियां होती थी जहाँ पे 1000-2000 की गैदरिंग होती थी, तो हर आदमी का व्यापार घटा है, इनकम घटी है, उसके चलते लोगों ने अपना खर्चा है वो काफी कम किया है। शादी ब्याह में वो उतने ही लोगों को बुलाते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री किस पे टिकी है कि शादी ब्याह होगी तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। मैं आपको एक दाखला देता हूँ, पूरे साल में जितनी भी शादी की सीजन रहती है, जैसे अभी मई, जून और जुलाई में मतलब फर्स्ट वीक तक कुछ सावे हैं, तो वो सावे फिलहाल तो कम है, लेकिन बिफोर जो सावे थे दीपावली के बाद के, तो ये 35,000 करोड़ का सालाना कारोबार शादी ब्याह की सीजन का था, जो हमें लग रहा है इस साल पूरा ये 20,000 करोड़ को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं कमी हुई है। वो कटौती कहां हुई है कि लोगों ने शादी ब्याह में लोगों को बुलाना कम किया। क्यों कम किया है? कि उनको भी खर्चे कम करने हैं। तो ये सारा असर सूरत कपड़ा मंडी पे आ रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट की अगर बात करने जाओ तो आप देखिए यूरोप की इंडस्ट्री, यूरोप की है, यूके की पोजीशन देख लीजिए, वहां की इकोनॉमी खुद मतलब हालत खराब है उनकी, तो वो हमारे से कपड़ा कैसे मंगाएगा? वहां भी सबसे पहले प्राथमिकता वही है, रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद रोटी और कपड़ा, उसके बाद ये अपना दवा, जो भी एजुकेशन है उसमें कपड़ा अब लास्ट में आने लग गया। तो ये सारा असर सूरत पे आने लग गया। अभी आप देख लीजिए हाल ही में यूक्रेन और रशिया का युद्ध कंटिन्यू चालू है, 1 साल से ऊपर हो गया। तो इसका कहीं ना कहीं असर चाहे यूरोप कंट्री पे हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह असर पड़ा है। तो हमारा एक्सपोर्ट भी है वो काफी चरमराया है। तो नेचुरली है, तो हमें वो कटौती करनी पड़ेगी। वो कटौती होगी तो वो वीविंग पे होगी, प्रोसेसिंग पे, हर स्टेज पे होगी। जी जी बिल्कुल शारदा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वैश्विक जो आधार पर भी जो चीज़ें हैं वो भी देखी जा सकती है कि बाकी देशों के अंदर भी स्थिति काफ़ी गंभीर है, और फिर भी हमारे देश की स्थिति बाकी देशों की जगह पर फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है। लेकिन जिस तरह से लोगों की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी है और जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे, तो नेचुरली जो कहीं ना कहीं वो कटौती आएगी। ये जो इंडस्ट्री की जो मार है, जो अभी जो मंदी की मार है, तो वो वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री जो है कपड़ा बाजार की, उसके ऊपर भी मार देखने को मिलेगी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा मार पड़ी है। जनरली क्या होता है, कपड़ा कोई भी प्रोडक्ट है वो शुरुआत में होता है तो 400-500 रुपए का होता है, लेकिन वैल्यू एडिशन उस पे 1000 रुपए का होता है, 500 रुपए का होता है, 2000 का होता है, 4000 तक का होता है। लेकिन जनरली आप देखा जाए कि लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है, तो वैल्यू एडिशन को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों हुआ है कि लोगों ने उसका मतलब कम कर दिया कि उसको सस्ता कपड़ा चाहिए। तो सस्ता कपड़ा चाहिए तो हम वैल्यू एडिशन जो 1000 रुपए का करवाते थे या 1500 रुपए का कपड़े करवाते, उसको हम 500 रुपए पे लेके आ गए, 700 रुपए पे लेके आ गए। तो वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री को काफी धक्का लगा है। दूसरा ट्रेंड जो चेंज हुआ है, जो अभी हाल ही में ट्रेंड चेंज हुआ है, पहले वैल्यू एडिशन में एम्ब्रॉयडरी की मशीनें काफी चलती थी, लेकिन कंटिन्यू 10-12 साल से चलने से ट्रेंड चेंज होने की वजह से भी वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री पे इसका असर हुआ है। तो वहां पे तो मुझे लग रहा है 80% असर हो गया वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री पे, क्योंकि लोगों को अब सामान्य जितनी जरूरत है वो कपड़ा तो उनको मंगाना पड़ेगा, तो वो महंगा नहीं मंगा के वो नॉर्मल कपड़ा मंगाएंगे, सस्ता मंगाएंगे। वैल्यू एडिशन कोई भी है कपड़े पे ही होता है, उसको जितना वैल्यू एडिशन करवाना है उस हिसाब से करवा सकते हैं। लेकिन लोगों की क्रय शक्ति कम है तो कपड़ा तो मंगाना पड़ेगा जो जरूरत की चीज है, लेकिन वो क्या करेंगे, सस्ता मंगाएंगे। तो वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री है उस पर सर्वाधिक ज्यादा असर हुआ है। जी तो
ये जो असर आप देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों की जो परचेस पावर है वो कम होने के कारण इंडस्ट्री ने अभी तो फिलहाल ये प्रोडक्शन कम किया है। आने वाले टाइम में आप क्या भविष्य क्या देख रहे हैं? क्यों ऐसी ही स्थिति रहेगी तो इस पर कितना और ज्यादा असर आ सकता है? देखिए, आने वाले टाइम में अगर ये स्थिति रही तो इसका बहुत बुरा असर होने वाला है। मैं आपको एक दाखला देता हूं। सूरत में करीबन 70,000 दुकानें हैं। 70,000 दुकानें, कई व्यापारियों के पास जैसे 4 दुकान थी, अगर उसका प्रोडक्शन कम हुआ तो वो 2 दुकान में शिफ्ट कर गया। 2 दुकान उसने खाली करके सोचा किराए पे लगा दूं और कैसे ही मेरा काम निकले। जिनका 10 दुकान में काम चल रहा था उन्होंने 5 कर दिए। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि धीरे धीरे व्यापार कम होने की वजह से छोटे आदमी, जो छोटे दुकानदार है, उनको ज्यादा असर हो रहा है, क्योंकि उनका जो ओवरहेड है अगर वो नहीं निकलेगा तो वो कैसे इसको चालू कर पाएंगे। तो अभी वर्तमान की ये पोजीशन है। आज सूरत कपड़ा बाजार के जो करीबन 70,000 व्यापारी है और करीबन 194 200 मार्केट के आसपास है। तो आज कई मार्केटों में ऐसा है कि जहां 25% दुकानें खाली है, कहीं 20% दुकानें खाली है। मेन अच्छे अच्छे बड़े बड़े मार्केट जहां पे दुकान किराए पे नहीं मिलती थी, लोगों को एडवांस में बोलना पड़ता था कि जब भी कोई दुकान खाली हो पहले हमें फोन कीजिएगा। आज ये स्थिति है, वहां पे 10% खाली है, कहीं 15%, कहीं 25% दुकानें खाली पड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोग इससे हट रहे हैं, क्योंकि जहां तक है लोग सर्वाइव तब तक कर सकते हैं कि अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो जब तक तो वो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन अगर उसको नुकसान होने लगेगा तो उसकी मजबूरी है कि पहले तो खर्चे कम करो। तो वो खर्चा कम करेगा तो वो जगह की कमी करेगा। जहां 6 दुकान की जगह है वहां वो 4 पे लाएगा, 4 की है वो 2 पे लाएगा, 2 है वो 1 पे लाएगा। वो खर्चे कम करेगा। उसके बाद भी अगर उसका ओवरहेड उसको नहीं पोषण करेगा तो उसको क्या करने पड़ेगा? एट लास्ट उसको इस धंधे से निकलना पड़ेगा। तो पोजीशन वर्तमान में ये हो रही है और आगामी हमें नहीं लग रहा है। जैसे अभी वर्तमान में भी हमारे पास कोई सीजन नहीं है, जून जुलाई है, केवल एक साउथ की सीजन है आड़ी करके। आड़ी का मतलब क्या होता है? वहां पे सेल लगती है। सेल का मतलब है एक साड़ी पे एक साड़ी फ्री, एक साड़ी के साथ में कुछ आइटम या इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्री, वो ऐसा करते हैं। तो वो जनरली दुकानदार जो भी खरीदी पे यहाँ पे आते हैं तो वो यही डिमांड करते हैं कि आपके पास रुपए का माल है, उसमें आप कितना % डिस्काउंट देते हैं। तो कई लोग क्या पोजीशन है कि उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करता है? अपने माल का 10%, 15%, 20% डिस्काउंट करके अपनी दुकान को वो खाली करने की कोशिश करता है। तो ये पोजीशन में बताइए, जो आदमी अपने माल का 10%, 15% या 20% नुकसान करके या रेट टू रेट बेचेगा तो वो नई जो भी खरीदी करेगा तो वो उसमें उतना उत्साह नहीं रहेगा। और आने वाले समय में सीजन कौन सी रहेगी कि सीधा रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन टूक समय में चलता है और कुछ पर्टिकुलर मंडियों में चलता है, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो वहां पे चलता है। तो क्षणिक सीजन चलती है और उसकी आशा में व्यापारी अगर माल बना लेता है और वो सीजन चली जाती है, उसके पास माल पड़ा रह जाता है तो उसको उसमें नुकसान करना पड़ता है। तो कुल मिला के आने वाले समय में लोग हैं वो अपने प्रोडक्शन को और कम करते जा रहे हैं, और जैसे वो कम करेंगे और डायरेक्टली बाकी इंडस्ट्री पे इसका असर आएगा, चाहे वो वीविंग है, चाहे प्रोसेसिंग है, चाहे वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में, चाहे उससे पहले यान की इंडस्ट्री है, तो हर इंडस्ट्री में इसका असर आएगा। और जहां से हम माल बाहर व्यापारी को भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे भी आप देख लीजिए, जहां ट्रांसपोर्ट को दीपावली के सीजन में पर डे यहाँ से डोमेस्टिक 400 से 450 ट्रक जाते थे, वहां आज नॉर्मल डे में वहां 200 ट्रक जाते थे, आज 100 ट्रक को क्रॉस कर पाना मुश्किल है। शादी ब्याह की सीजन होती है वो भी 125 ट्रक से ऊपर हमारा माल यहाँ से आ रहा है डोमेस्टिक मंडियों के अंदर। तो आप देख लीजिए क्या करेंगे। तो आने वाले टाइम जो भी सीजनें आने वाली है, हमें नहीं लग रहा कि जो सीजनें हमारी दीपावली के बाद फैल गई है, चाहे वो पोंगल है, चाहे स्कूल यूनिफॉर्म है, चाहे हमारी ये रमजान की सीजन है, इसको देखते हुए लोगों ने अपना माल जो बनाना है वो काफी कम कर दिया है। तो हमें अभी फिलहाल कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जी शारदा जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये पूरी इंडस्ट्री में कितने लोग रोजगार पाते हैं, क्योंकि हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से सूरत के अंदर 2 सबसे बड़े उद्योग है। एक जो है वो डायमंड उद्योग है जो कि सबसे ज्यादा रोजगारी देता है, और दूसरा जो है वो टेक्सटाइल उद्योग है, जो कि ये दोनों उद्योग ही इतने सारे वर्करों को रोजगारी देता है। और ये जो अपना कपड़ा कारोबार है उसके अंदर तो मेरे ख्याल से पूरे देश भर के लोग यहाँ पर रोजगारी पाने के लिए आते हैं, और इसमें
जो इफेक्ट आ रहा है, तो कितने ज्यादा इसके अंदर लेबर को लॉस होगा, क्योंकि पूरे देश भर में ये स्थिति की असर जाएगी, क्योंकि सारे देश भर के लोग यहाँ पर रोजगारी के लिए आते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं आपको एक दाखला देता हूं कि ये जैसे ही मार्च आता है तो लेबर, शादियां काफी रहती है तो अपने गांव को जाते हैं, वतन को जाते हैं। तो हम लोग यहाँ की इंडस्ट्री वाले क्या बोलते हैं कि तेरे को जल्दी से आना है, तेरे को शादी पटा के जल्दी से जल्दी आना है। लेकिन आज ये पोजीशन है, इतने लेबर गांव जाने के बाद भी यहाँ का कोई इंडस्ट्रियल ये नहीं बोलता है कि तेरे को जल्दी आना है और फटाफट शादी पटा के आना है। जो भी लेबर यहाँ से जाना चाहते हैं उसको भी वो मना नहीं कर रहे हैं कि ठीक है, अगर वो जा रहा है तो उसको जाने दे रहे हैं। ये पोजीशन हो गई है। और कपड़े की प्रोडक्शन आप देखो ना, 4.5 करोड़ मीटर का अगर 3 करोड़ मीटर पे आ जाता पर डे का, तो ऑटोमेटिकली 25 से 30% लेबर है वो यहाँ के, उनके पास काम नहीं है। लेकिन वर्तमान में तो क्या है, अभी शादी ब्याह होने से लेबर अपने वतन को गए हैं, तो हमें उसकी मतलब लेबर को भी उतनी कमी महसूस नहीं हो रही है कि काम मिले। यहाँ पे जो रुके हुए उनको काम मिल रहा है, भले वो काम पहले से 25% कम मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अभी बारिश की सीजन आ जाएगी, उस वक्त भी जनरली लेबर है वो अपनी खेती से जुड़े होते हैं। इसमें ज्यादातर यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहां से लेबर आते हैं। तो वो अपने वतन को जाएंगे और खेती में भी लग जाते हैं और वापस 2 महीने के बाद आते हैं। तो ये भी 2-3 महीने लेबर को इतनी परेशानी नहीं होगी और इंडस्ट्रियल को भी इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन एट लास्ट ये बात है कि 25 से 30% लेबर को इसमें प्रॉब्लम आएगी आने वाले टाइम में। अगर सामने अगर कोई सीजन अगर वापस अच्छे से नहीं चली और कोई उम्मीद की किरण अगर नहीं जगेगी, तो मुझे लगता है कि जो लेबर गांव जाएगा वो यहाँ से फोन करता है। जैसे अभी शादी ब्याह में जो लेबर गया है, तो यहाँ की लेबर को, यहाँ के अपने मित्र को फोन करता है क्या पोजीशन है, तो वो सामने से बोलता है अभी तुम 15 दिन 20 दिन और रह गया हुआ है तो वादा नहीं है, तो आराम से आना। तो लेबर को अभी सर्वाइव कर लेगा, एक बार गांव गया तो वो 1 महीना एक्स्ट्रा रह जाएगा। लेकिन जब उसके पास पैसा खत्म हो जाएगा तो नेचुरल है वो सूरत आएगा। अगर सूरत आएगा गया तो उसको काम नहीं मिलेगा, काम मिलेगा लेकिन उसको पैसा कम मिलेगा, तो आखिर लेबर को भी कोई ना कोई अपना रास्ता देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के अभी आने वाले समय पे डिपेंड करेगा राखी की सीजन के आसपास, और छत्तीसगढ़ की जैसे तीजा सीजन आती है और नेक्स्ट ओणम सीजन जो आएगी, उसके बाद में वापिस दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दीपावली की सीजन आएगी। तो उससे पहले ये 3 महीने 4 महीने पहले हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। उस समय मालूम पड़ेगा कि लेबर की प्रॉब्लम हमें पड़ेगी या लेबर को अन्य रास्ता देखना पड़ेगा। फिलहाल जो 25 से 30% लेबर की कट ऑफ हुआ है, लेकिन वो अभी असर इतना नहीं दिख रहा है। उसकी वजह ड्यू टू शादी ब्याह में गांव गए हैं, अभी जैसे ही बारिश गिरेगी तो वो गांव जाएंगे। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल शारदा जी, ये बहुत ही अच्छी साइन है कि चलो लेबर को भी अपना जो काम है वो निकल जाएगा और इंडस्ट्री को भी इतना लोड नहीं आएगा, या लेबर को छुट्टी देना या उनको जो काम ना दे पाना जो भी असर होती थी वो कम आएगी। लेकिन आने वाले समय के लिए सोचना बहुत जरूरी है। सरकार इसके अंदर आपको किसी तरह से क्या सहयोग मिल सकता है? सरकार की तरफ से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, सरकार की तरफ से हम ये अपेक्षा रखना चाहते हैं कि इतने दिन तो हम हमारे हिसाब से चल गए, अब अगर सरकारी कोई मदद नहीं मिलेगी तो आने वाले समय में सूरत कपड़ा कारोबार को काफी तकलीफ आएगी। अभी इतने दिन तो हमारा काम चल रहा था, आने वाला समय है वो गारमेंट का है। अगर सरकार यहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है, सरकार वो सुविधाएं देती है स्किल्ड कारीगर के लिए, अगर वो यहाँ की राज्य सरकार भी हमारे को सुविधाएं देती है। मैं आपको छोटा एक दाखला देता हूँ। तिरपुर मंडी जो एक तमिलनाडु की मंडी है, वहां से जो भी गारमेंट है वो एक्सपोर्ट होता है। आज एशिया के अंदर सबसे एक्सपोर्टर मतलब चाइना के बाद में बांग्लादेश था। वहां बांग्लादेश में भी काफी तकलीफ आ रही है क्योंकि ये यूरोप की है, यूके की, ये सब की हालत वहां की खराब है। तो तिरपुर मंडी का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता है वो इंडिया से मतलब तिरपुर मंडी से हो रहा है। हम 85,000 करोड़ का कारोबार हमने पिछले साल कोरोना के समय में सूरत कपड़ा मंडी ने किया डोमेस्टिक। तिरपुर जैसी मंडी 35,000 करोड़ का कारोबार करती है, लेकिन वहां की जो सुविधाएं हैं गारमेंट की, वहां की राज्य सरकार को जो वहां सुविधाएं मिलती है, तो हमें अभी एक ही उम्मीद जगती है कि गारमेंट हब यहाँ पे होवे, और गारमेंट हब के लिए जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमें सुविधाएं दे सके तो आने वाला युग गारमेंट का है। तो हम हमारे जो भी प्रोडक्शन लॉस हो रहा है हम उसको अचीव कर पाएंगे। इसमें हमें सुविधा कैसे चाहिए
कि जैसे मतलब बैंकों से लोन वगैरह है, स्किल्ड कारीगर हमें चाहिए स्किल्ड गारमेंट के लिए, तो स्किल्ड कारीगर के लिए कुछ सरकार सुविधाएं देंगी और उनको स्किल्ड करने के लिए, और उसके लिए लेबोरेटरीज खुलेगी, कॉलेज खुलेंगे, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी यहाँ खुलती है, तो उसका असर आने वाले समय में इसका फर्क पड़ेगा और सूरत कपड़ा मंडी को इसमें बूस्ट मिलेगा। तो गारमेंट हब को देखते हुए सरकार को इसकी ओर कदम उठाना चाहिए, जिससे सूरत कपड़ा इंडस्ट्री को इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार भी इस मामले में जरूर सोचे, ऐसी बात आपकी बिल्कुल ही जायज़ है और आने वाले समय में इस उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। रंगनाथ सारदा जी पूर्व फोस्टा प्रमुख थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे। सारदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बहुत ही अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, हमारे साथ आप लाइव जुड़े और आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल आज ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। તો આપણે જોયું કે કઈ રીતે અત્યારે કપડા કારોબાર જે રીતે ઇફેક્ટ થઈ રહ્યો છે, મંદીની માર જે ભયંકર રીતે જકડી રહી છે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને, અને હાલ અત્યારે એની અસર એટલી ઝાઝી નથી દેખાઈ રહી, કારણ કે જે પહેલાનો સ્ટોક છે કપડા ઉદ્યોગમાં એ હાલ અત્યારે ક્લિયર થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આવનારા સમયમાં આ જે મંદીનો માર છે એ ખૂબ જ ખરાબ રીતે બહાર આવશે અને એના કારણે હજારો લાખો લોકો ઉપર એની અસર દેખાશે। તો આજે આપણા આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ। ફરી આપણે નવા વિષય સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।